Good evening, everyone. Welcome back to learning session. This is Rupali. And if you are preparing for DR exam, then do watch this video till end. Because in this video, we are covering important questions in the form of MCQs till the exams. So stay tuned till the exams. And if you want to purchase DRA course, then you have to download our Android application from Google Play Store, which is IIBF Learning Center app. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app. Use the organization code, which is GEGKT, as you can see on the screen. As well as you can also join our Telegram channel. So in this channel, you will be getting latest updates and notification. Yes, you will be getting free ePDF notes of important questions and important topic of DRA, as well as you will be getting important questions in the form of polls. So hurry up guys, जल्दी से जल्दी जाके Telegram channel को join कर लीजिए. And yes, to enroll the DRA course, here is exciting offer which is given by us, that is flat 82% on off on our all packs. Just you have to apply coupon code new 2023, as you can see on the screen. So don't miss the chance, just grab the opportunity to enroll the DRA course. And after enrollment, you will be getting chapter-wise previous year question, full course videos, mega mock test, and yes, free ePDF notes. To get the free ePDF notes, you just have to join our Telegram channel. The link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it out. And if you have any query and doubt, just you have to call on our WhatsApp number. आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आप 9 to 5 कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो. सो स्टे ट्यून टिल द एग्जाम. तब तक हमारे एमसीक्यूज ही चलेंगे और कुछ मेगा क्लासेस भी चलेंगी डीआरए की. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ our session is: recovery agent can make a call to the debtor before 700 hours or after 2100 hours. Is this statement is true or false? So क्या बताना हमने. ये जो रिकवरी एजेंट्स है, देखो क्या होता है, जब कोई भी बैंक एक पर्सन को लोन प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं ए पर्सन को इसने लोन प्रोवाइड किया है, राइट. सो अब ए पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है कुछ साल बाद, ठीक है. मान लेते हैं 5 साल की इसकी ड्यूरेशन थी, 5 साल बाद क्या है, 5 साल तक इसने क्या है अपना लोन चुकाना था, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक अपना लोन चुकाता है, 2 साल का रह जाता है. तो इस केस में क्या है, यहाँ पे बैंक बहुत ज्यादा जोर लगाता है, तब भी वो रिकवरी नहीं करते. उसके बाद बैंक क्या करता है, डीआरए को यहाँ पे अपॉइंट करता है डेट रिकवरी एजेंट, ठीक है. अब डेट रिकवरी एजेंट जब भी ए पर्सन के पास जाएगा तो उसको पहले डेट रिकवरी एजेंट जो है वो डेटर को क्या करेगा, कॉल करेगा. तो यहाँ पे ये पूछा गया है, क्या वो कॉल 700 आवर्स या फिर उसके बाद 2100 आवर्स बाद कॉल कर सकता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इज इट ट्रू और फॉल्स? विच इज द करेक्ट आंसर? Which is the correct answer? Please let me know in the comment section box. Please let me know in the comment section box which is the correct answer. Is it true or false? बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने मेरी कंसेप्चुअल वीडियोस देखी हैं, ठीक है, आपने मॉड्यूल बी किया है डीआरए का, तो आपको इजीली पता होगा. सो द राइट आंसर इज यस. राइट आंसर विल बी द इज इट ट्रू और फॉल्स. फटाफट बता दें. यस, तो राइट आंसर विल बी द फॉल्स, ठीक है. ये क्या है, फॉल्स है यहाँ पे. अब फॉल्स क्यों है, let's look on the description. So the agent contacts the debtor between 700 hours and 1900 hours unless the special circumstances of his or her business or occupation require the bank to contact of a different time. Under no circumstances the customer can be called beyond 2100 hours, ठीक है. वैसे तो 700 hours से लेके 1900 hours तक है, लेकिन अगर किसी भी तरह की circumstances नहीं होती है तो उस कस्टमर को 2100 hours के बीच में उसको कॉल कर सकते हैं. Is it clear? So let's have the next question. The effect of NPA. NPA is what? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है. अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के इफेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज ड्यू टू द अनसर्टिनिटी दैट इज डिले और या डिफॉल्ट ऑफ इनकम फ्लोज ऑफ द बैंक. तो बैंक के जितने भी इनकम फ्लोज होते हैं, अगर उनमें डिले हो जाए या डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनके पास इनकम आ रही है उसके ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन सेज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक गोज डाउन. अब जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा बैंक्स का वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, राइट. एंड सी ऑप्शन सेज बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आई होप आपको एनपीए का कंसेप्ट क्लियर होगा. तो एनपीए इज व्हाट? नॉन
परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होगी? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आई होप आप पेपर इजीली से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआरए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? अब बैंक मान लेते हैं, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम क्या होता है? लैंडिंग करना और क्या करना? डिपॉजिट करना, ठीक है। अब अगर बैंक किसी भी पर्सन को, अपने कस्टमर्स को जब लैंडिंग प्रोवाइड करता है तो क्या करेगा? अपने एसेट्स दे रहा है, ठीक है। एज अ लाइक एसेट्स होते हैं उसके लिए। एसेट्स क्यों? क्योंकि वहां से उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसे उसको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसे जो मिलते हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। और डिपॉजिट उसके लिए क्या होंगे? लायबिलिटी बन जाएगी। अब कस्टमर जब भी बैंक के पास अपने डिपॉजिट रखवाती हैं तो बैंक लायबल होता है उनको रीपे करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली जो कस्टमर होंगे यहाँ पे वो लायबल होते हैं बैंक को अपने पैसे, उनके पैसे वापस करने के लिए, ठीक है। इसीलिए बैंक के लिए जो उनका लोन होगा वो क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। एंड जो डिपॉजिट्स होते हैं वो उनकी लायबिलिटी बन जाती है। अगर कोई भी पर्सन उस एसेट को, जो भी बैंक के लिए एसेट है यानी कि लोन है, उसको पे करने के लिए डिफॉल्ट कर जाता है, तो इसीलिए बैंक उस जो अकाउंट है उसको क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। ये एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग है, वो परफॉर्म नहीं कर रही है, डिफॉल्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब एनपीए, अगर वहां से उनको लोन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एसेट में क्या हो जाता है? वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं। उस केस में क्या होता है? इनका जो इनकम होता है, अब देखो वो इनकम कहाँ से कमा रहे हैं? वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट से कमा रहे हैं इनकम, ठीक है। उनका जो इनकम ऑफ फ्लो है वो कहाँ से आ रहा है? इंटरेस्ट से आ रहा है, राइट। अब उस केस में क्या हो जाता है? वो जो इंटरेस्ट अगर नहीं मिलेगा तो उनका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता, राइट। अब प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कैसे होगा? देखो, बैंक एक पर्सन को, एक ए पर्सन है, उसको 25,000 रुपीज लोन दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? आई एम गेसिंग यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा। सो बैंक क्या है? ए पर्सन को यहाँ पे 25,000 का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड वहीं बी पर्सन बैंक को कितना दे रहा है? बी पर्सन यहाँ पे बैंक को देता है 30,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट यहाँ पे देता है, ठीक है। अब 30,000 जो वो डिपॉजिट देता है उसमें से ही 25,000 वो ए पर्सन को देता है, तो 5,000 की यहाँ पे क्या हो जाती है? उनकी प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, राइट। अब यहाँ से जो 25,000 का जो उसने लोन दिया है उसके ऊपर जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो बैंक के लिए क्या हो जाता है? एज अ इनकम बनता है। तो अब जब यहाँ पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो उनका जो इनकम होगा, उनकी प्रॉफिट मार्जिन होगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, राइट। इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। So let's have the next question. So, which section of Indian Stamp Act provides for cancellation of adhesive stamp so that the same cannot be used again? अभी कौन से सेक्शन के अंदर, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर ये बोला गया है कि कैंसिलेशन के लिए, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैंसिलेशन लगाना है तो उसके लिए एडहेसिव स्टैम्प यूज होगा, सो दैट वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो आगे यूज ना हो सके। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है? इज इट अंडर द सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, या फिर अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? फटाफट से बता दें राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द 12th सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 12 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली सेक्शन 12 के अंदर ये बोला गया है कि जो भी कैंसिलेशन जो कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगेगा, सो डेट उसे आगे यूज ना किया जा सके, ठीक है। उसका पहले ही स्टैम्प से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कि ये कैंसल्ड है, राइट। एंड लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लें। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी इज। अब यहाँ पे आपने टाइप ऑफ चार्जेस तो सुने होंगे। फर्स्ट वन इज प्लेज, ठीक है, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन, राइट। अब आपने असाइनमेंट भी सुना होगा, अगर आपने मेरी कंसेप्चुअल वीडियोस देखी हैं तो आपने असाइनमेंट भी सुना होगा। तो असाइनमेंट क्या चीज होती है? एक आपने लियन भी सुना होगा, ठीक है। ये 5 टाइप के यहाँ पे
चार्जेस होते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें तीनों चीजें तो क्लियर होंगी आई होप, क्योंकि कल की वीडियो में भी आपको मैंने ये तीनों के बारे में अच्छे से बताया था और डिफरेंस भी बताया था इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो लियन क्या चीज है, एक राइट है, ठीक है, एक राइट है बैंक का, जिसके अंदर अगर 1% डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, अगर 1% डिफॉल्ट कर जाता है तो लियन के केस में क्या होता है, जो भी उसके पास एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास होती है तो वो बैंक क्या करता है, उसको सेल आउट कर देता है। उसके पास राइट होता है कि जब तक जो ए पर्सन है या जो भी कस्टमर है, अगर वो जब तक अपना लोन रीपे नहीं कर देते तब तक वो जो सिक्योरिटी है वो किसके पोसेशन में रहेगी, यस, बैंक के पोसेशन में रहेगी, ठीक है। जैसे ही वो रीपे कर देता है तो बैंक क्या है, उसको वापस सब कुछ कर देता है, ठीक है। अब असाइनमेंट के केस में क्या है, अब मान लेते हैं ए पर्सन है, ए पर्सन बैंक के पास लोन लेने गया और बैंक यहाँ पे बोलते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट द एनी लोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक यहाँ जो ए पर्सन है वो बैंक को बोलेगा मेरे पास ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है जो जिसको मैं रखवा सकूं। तो ए पर्सन के पास LIC पॉलिसी होती है, ए पर्सन के पास LIC पॉलिसी होती है, ठीक है। अब ये LIC पॉलिसी बैंक को देता है एज ए सिक्योरिटी। अब बैंक LIC इंश्योरेंस के पास जाती है, देखती है कि कितने की क्लेम है, ठीक है। अब वो लेना चाहता है 2 लाख का, ठीक है, वो लेना चाहता है 2 लाख का, लेकिन LIC पॉलिसी है 5 लाख का, तो उससे ज्यादा ही है, तो ऑब्वियसली LIC पॉलिसी को यहाँ पे वो एज अ गिरवी रख लेता है, ठीक है। अब अगर ए पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है तो वो बैंक रिकवर कहां से करवाएगा, बैंक रिकवर कहां से करवाएगा, ऑब्वियसली LIC पॉलिसी से करवाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस से करवाएगा, राइट। तो इस टाइप जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, ठीक है। आई होप आपको प्लेज, लियन, असाइनमेंट, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन का पता लग गया होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था कि जो आप जैसे बुक डेट्स होगी है, ठीक है, बुक डेट्स होगी उस पे भी क्या लगता है, असाइनमेंट लगती है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं उसके मेच्योरिटी डेट होने पे उसको वापस कर देते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं है रखवाने के लिए तो आप इन सबको यूज कर सकते हो, ठीक है, इन सब के ऊपर चार्ज लग सकता है, ठीक है। इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। तो देख लेते हैं असाइनमेंट होता क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन एक 1 लाइन है। इट इज अ प्रोसेस वेयर द पॉलिसी होल्डर्स ट्रांसफर द राइट टू अनदर पर्सन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पॉलिसी होल्डर अपना जो राइट है वो दूसरे पर्सन को देता है। दूसरा पर्सन कौन हो सकता है, यहाँ पे बैंक हो सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो पोसेशन रख सकते हैं जब तक वो रीपे नहीं कर देते उस लोन को, ठीक है। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजिली विद इन 1 सेकेंड इसको सॉल्व कर पाओगे। So the question says, which of the following is the element of interpersonal skills for recovery agent? अब recovery agent क्या करती हैं, बहुत सारे skills use करती हैं recovery process के अंदर। तो सबसे पहले कौन कौन से होगा, देखो मोटिवेट अगर करना होगा तो persuasive skills वो लगाएगा, listening skills होनी चाहिए, ठीक है, interpersonal skills होनी चाहिए, communication skills होनी चाहिए उसके अंदर, so that वो recovery agent क्या है, अच्छे से अपने रिश्ता बना सके और easily recovery process कर सके, ठीक है। सो ए ऑप्शन से कम्युनिकेट एंड लिसन प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, कि वो जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन ले, ठीक है, इफेक्टिवली सुने और इफेक्टिवली ही वो कम्युनिकेट करें, राइट। एंड सेकेंड वन इज शो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट टू द अनदर पार्टी नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट द ही और शी, यहाँ पे ही आएगा, he or she is a debtor to the principal. Next is give all the information the debtor asks for in connection with the debt and his repayment. तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोला गया है कि कम्युनिकेशन एक तो अच्छे से हो, लिसनिंग एक दूसरे से अच्छे से सुने वो, ठीक है, और सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे देने चाहिए, ठीक है, उस एजेंट को, जो भी डेटर, जो भी रिकवरी एजेंट को चाहिए होगा, या फिर जो डेटर जो इंफॉर्मेशन मांगता है, ठीक है, डेट और रीपेमेंट के लिए, वो सब किसने देने हैं, रिकवरी एजेंट को दे देने चाहिए, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, फटाफट से बता दे। इंटरपर्सनल स्किल्स होते क्या हैं जो रिकवरी एजेंट यूज करता है रिकवरी प्रोसेस के लिए, राइट। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आई होप आपको वहां से क्लियर हो जाए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स रेफर्स टू कम्युनिकेशन प्लस स्किल्स दैट इनहेंसेस द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करता है, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा के बीच में। अब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कौन होंगे, बैंक हो सकते हैं, और उसके बैंक भी हो सकते हैं, रिकवरी एजेंट भी हो सकता है, एंड मोर ओवर जो भी डेटर होगा, ठीक है। इट thus include communication and listening skill plus something more, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब आपस में रिलेशनशिप बनाना, कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे को समझना, बॉन्डिंग अच्छे से बनाना, ठीक है, नॉट पर्सनल लेवल बट इन द प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी द
ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन क्या आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर, इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, ठीक है। So let's have the next question. Attachment order is in respect of bank account is issued by. तो अटैचमेंट ऑर्डर जो है जिसको बैंक अकाउंट इशू करवाता है वो क्या होता है, ठीक है, कौन करवाता है, इज इट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, आईबीए या फिर टैक्स अथॉरिटीज, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अटैचमेंट ऑर्डर होते क्या है, ठीक है। आपने गार्निशी ऑर्डर सुना होगा, अटैचमेंट ऑर्डर सुना होगा। तो अटैचमेंट ऑर्डर में जो वहां पे इशू करवाया जाता है, ठीक है, नोटिस, वो कौन करता है। यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, अगर ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कंडीशन लगाई थी कि मैं आपको हर मंथ 5,000 रुपीज दूंगा और वो ए पर्सन डिफॉल्ट हो जाता है बी पर्सन को पैसे देने के लिए, तो बी पर्सन कहाँ पे जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट जो है वो ए पर्सन के ऊपर गार्निशी ऑर्डर इशू कर देगा, ठीक है। इंटरवेंशन किसकी होगी, बैंक की होगी, तो उसको बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। अब अगर हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑर्डर की, अगर कोई भी गवर्नमेंट के ड्यूज पेंडिंग होते हैं, उस केस में अटैचमेंट ऑर्डर लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आई होप आपको वहां से क्लियर हो जाए और आप आंसर को इजिली दे पाओ, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कौन करवाता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज करवाती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है कि that has delegated powers to assessing officer or tax recovery officer to require any person from whom money is due and may become due assessed to pay the income tax authority। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो भी पे नहीं करता, अब मान लेते हैं जैसे कि ए पर्सन ने अभी तक क्या है, गवर्नमेंट ड्यूज यहाँ पे इनकम टैक्स को अपने पैसे नहीं दिए, तो ये किसके बीच में आएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ड्यूज के बीच में आएगा। तो अगर इनकम टैक्स नहीं दिया तो उस केस में क्या है, अटैचमेंट ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे और क्या होगा, डेट इज टैक्स अथॉरिटी, राइट। राइट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन, टैक्स अथॉरिटी। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process of educating the borrowers about how to avoid incurring debts that cannot be repaid, and as also how to manage the debt burden and repayment commitment in respect of a number of debts। जो बोरवर्स होते हैं, मान जो बोरवर कौन होंगे, जो बैंक से यहाँ पे लोन लेते हैं, ठीक है। सो बैंक से जो भी लोन लेता है, ठीक है, वो बोरवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे बोरवर को एजुकेट किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि किस तरह से आप जो भी आपकी इनकरिंग डेट्स हैं, ठीक है, आप उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हो, आप उसको किस तरह से मैनेज करके रीपे कर सकते हो और डेट का बर्डन नहीं ले सकते, ठीक है। जो भी आपने कमिटमेंट की है आप उसको रीपे कैसे कर सकते हो, जो भी आपके जितने भी टाइप के जितने भी नंबर ऑफ डेट्स हो सकते हैं। तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, इज इट कॉल्ड क्रेडिट काउंसलिंग, इज इट कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इज इट कॉल्ड रिकवरी प्रोसेस, और इज इट सॉरी या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बोरवर को सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि किस तरह से जो आपके इनकरिंग डेट्स है उनको अवॉइड कर सकते हो, और आप जो भी इनकरिंग डेट्स कौन से होते हैं जो आप रीपे नहीं कर पाते हो, ठीक है, और जो भी डेट बर्डन होता है उसको किस तरह से मैनेज करें, जो भी आपने कमिटमेंट की थी उसकी रीपेमेंट किस तरह से की जाए। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट काउंसलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग करवाना, क्रेडिट मींस कि यहाँ पे आप लोन जो प्रोवाइड करते हो क्रेडिट पे दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड सिमिलर हैं, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे एजुकेट करवाते हो, आप काउंसलिंग करते हो, समझाते हो, ठीक है। क्रेडिट मींस लोन, ठीक है, जो आप क्रेडिट पे देते हो, जो बोरवर क्रेडिट पे अपने लिए पैसे लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म EMI in a housing or vehicle loan is calculated on the basis of। EMI क्या होता है, if you have any idea कि EMI की full form क्या होती है, what does EMI stand for, please let me know in the comment section box। I am waiting for your answer, please let me know in the comment section box। EMI का full form क्या है, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, फिर उसके बाद आप 8 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। सो यस, EMI क्या होता है, इक्वेटेड मनी
इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि हम मनी जो जो सॉरी जो इंस्टॉलमेंट है उसको मंथली बेसिस पे हम उसको पे करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हाउसिंग है या फिर व्हीकल लोन है उसके लिए हम ईएमआई भरते हैं, तो वो कौन से बेसिस पे होते हैं? इज इट प्रिंसिपल ऑफ द लोन, जो भी लोन है उसके प्रिंसिपल पे, या फिर जो भी जो लोन है, ठीक है, या फिर जो उसका इंटरेस्ट है, सॉरी जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है और जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ईएमआई लगती है, या फिर इंटरेस्ट ऑन द लोन, या फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग चार्ज ऑन द लोन। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, हरी अप। ईएमआई किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? सो राइट ऑप्शन विल बी द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द लोन। जो लोन होगा, जैसे मान लेते हैं 50,000 का लोन है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? 50,000, एंड उस पे जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, 5%, 6%, तो उन दोनों को मिला के यहाँ पे ईएमआई, इनके ऊपर बेस पे ईएमआई कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट ओके? So yes, let's have the next question. बहुत ज़्यादा important topic से है. So which type of mortgage is created by deed which is required to be registered with the registrar of assurances? तो अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं मॉर्गेजेस के, जैसे कि सिंपल मॉर्गेज हो जाता है, इंग्लिश मॉर्गेज हो जाता है, कंडीशनल सेल मॉर्गेज है, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉर्गेज है जहां पे डीड को क्रिएट किया जाता है और रजिस्ट्री करवानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मॉर्गेज क्या होता है? ये इमूवेबल एसेट्स पे लगते हैं। किस पे लगेंगे? इमूवेबल। बाकी जो प्लेज और हाइपोथिकेशन है वो मूवेबल एसेट्स पे लगते हैं। ये मूवेबल एसेट्स पे लगते हैं, जो भी हम सिक्योरिटीज रखवाते हैं इमूवेबल सिक्योरिटीज पे, राइट। अब इसका जो ऑनरशिप होगा, जो ऑनरशिप होती है एंड जो इसकी पोसेशन होती है वो किसके पास रहेगी? यस, किसके पास रहती है वो? एनी आइडिया? ऑनरशिप एंड पोसेशन जो होती है वो ऑनर के पास ही रहती है, मतलब कि उस डेटर के पास ही रहती है। अगर वो डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक मॉर्गेज लगा हुआ है, ठीक है। अब इनमें से कोई मॉर्गेज लगा हुआ है, ठीक है, जो इसका राइट जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर वो मॉर्गेज नहीं पे सॉरी अगर वो लोन पे नहीं कर पाता है तो सिंपल मॉर्गेज लगता है उनके ऊपर। मतलब कि सिंपल मॉर्गेज में क्या बोला गया है कि अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो उनके पास राइट होता है कि वो अपने पोसेशन वो जो एसेट रखा गया है उसको सेल आउट कर सके। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं रिलेटेड टू सिंपल मॉर्गेज, जिसको सेक्शन 58B के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड अगर मॉर्गेजर फेल कर जाता है लोन को रीपे करने के लिए, तो जो लेंडर है, क्रेडिटर है, उसके पास राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सके एंड जो उस प्रॉपर्टी से जो पैसे आ रहे हैं उससे अपने रिकवर करवा सके अमाउंट को, ठीक है। तो अब इस मॉर्गेज को सिंपल मॉर्गेज कहा जाता है और इसके अंदर जो पोसेशन रहता है वो बोरोवर के पास ही रहेगा। वो किसके पास रहेगा? बोरोवर के पास ही रहेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बोरोवर के पास पोसेशन रहता है, ऑनरशिप भी किसके पास रहेगी? बोरोवर के पास रहेगी। एंड इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एंड जो मॉर्गेजर होगा उसकी ये पर्सनली लायबल होता है उसको पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। सो यस, the next question is which is the largest bank in India and has more than 24,000 branches in India? तो आपको पता होगा इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है एंड 24,000 बैंक है। अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पहले उस बैंक के कितने थे? 13,000 यहाँ पे ब्रांचेस थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 24,000 हो चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो कौन कौन से हैं? आईडीबीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? उसके इंडिया के अंदर 24,000 उसके ब्रांचेस हैं ओवरऑल एंड मोर ओवर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है एनपीए का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एनपीए के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। सो क्वेश्चन सेज इफ अ बिल इज नॉट पेड फॉर 50 days व्हाट काइंड ऑफ एसेट इज इट टू द बैंक? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक बिल
कोई भी बिल जो कि 50 डेज तक यहाँ पे नहीं किया गया है तो कौन सा एसेट माना जाता है बैंक के लिए? इज इट स्टैंडर्ड एसेट, इज इट सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट या फिर लॉस एसेट? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 टाइप के वैसे एसेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट वो होते हैं जो कि अपने टाइम के अंदर ही वो क्या कर लेते हैं, उसको रीपे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जो कि बिल यहाँ पे रीपे नहीं हुआ है, उस केस में बैंक के लिए कौन सा एसेट माना जाता है? सो प्लीज लेट मी नो, फटाफट से बता दीजिए याद करके कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ड्रामेटिकली आपको मैं बता देती हूँ। तो लोन एडवांसेस जो भी बैंक के थ्रू दिए जाते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनके लिए एसेट होते हैं, ठीक है। अब एसेट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड एसेट होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट यहाँ पे कौन से होंगे, जो कि 1 to 90 डेज के अंदर अगर डिले हो जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड एसेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर कोई भी एसेट या जो भी लोन जो 90 डेज से अबव डिले हो जाते हैं, रिकवर नहीं करवाए जाते, तो वो किसके अंदर आएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से गो थ्रू कर ले। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एंड सबस्टैंडर्ड एसेट कौन से होते हैं, वो लोन जो कि 12 महीने तक उसको पे नहीं किया गया उसके इंटरेस्ट को, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स में कौन से होते हैं, जो 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक लोन नहीं यहाँ पे किया गया है, उसको रीपे नहीं किया गया है। एंड लॉस एसेट्स कौन से होते हैं, जहां पे बैंक को पता लग जाता है कि यहाँ से रिकवर करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एसेट के बारे में। तो 1 to 90 डेज के अंदर जो डिले हो जाते हैं वो स्ट्रेस एसेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब स्ट्रेस एसेट के अंदर SMA 0, SMA 1, SMA 2, दैट इज SMA इज व्हाट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर कौन से आएंगे, जो कि 1 to 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे जो डिले हो जाते हैं वो SMA 0 के अंदर आएंगे। SMA 1 के अंदर कौन से आएंगे, जो 31 to 60 डेज के अंदर अंदर जो डिले हो जाते हैं वो SMA 1 के अंदर आते हैं। SMA 2 के अंदर कौन से आएंगे, 61 से 90 डेज तक, ठीक है। अब 90 डेज तक यहाँ पे दिखा हुआ था, तो 90 डेज तक ही जो नहीं रीपे किए जाते हैं उसके लोन की इंटरेस्ट को, तो वो किस में आएगा, SMA 2 के अंदर आएगा, जो कि स्ट्रेस एसेट में होता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 50 डेज, 50 डेज। अब यहां से मुझे देख के बता, जो 50 डेज के अंदर अंदर इन रीपे नहीं किया गया है तो किसके अंदर आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट या फिर लॉस एसेट। जिसपे मैंने टिक की है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो ये ऑप्शंस दिए गए थे। 50 डेज तक यहाँ पे बिल रीपे नहीं हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लोन की बात हो रही है, लोन 50 डेज तक रीपे नहीं हुआ, तो कौन से एसेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इज इट स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या फिर लॉस एसेट? देखो सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर सीधा 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स तक कोई अगर रीपे नहीं करता है तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल के अंदर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 50 डेज दिए गए तो ऑब्वियसली क्या है, स्टैंडर्ड एसेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर 1 to 90 डेज तक का टाइम दिया गया होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। जैसे ही 90 डेज से अबव हो जाते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एनपीए के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फर्दर एनपीए की यहाँ पे क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं, तो राइट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपने डीआरए के कोर्स को परचेज करना है देन जस्ट यू हैव टू डाउनलोड आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन विच इज IRBF Learning Center app. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app and use the organization code which is GEGKT, as you can see on the screen. As well as you can also join our Telegram channel. So in this channel, you will be getting latest updates and notification regarding DRA and certification course. आपको daily updations मिलती रहेंगी 2023 के accordingly. And इसके अंदर आपको free e-PDF notes भी मिलेंगे according to important topic and questions of DRA and another certification course. तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. And there is mega offer which is flat 82% off on our all listed pack. Just you have to apply coupon code new 2023. So don't miss the chance.
Just grab the opportunity to enroll the DRA course, which is flat 82% off, as you can see on the screen. And after enrollment, you will be getting chapter-wise previous year question, full course videos, mega mock test, recorded live lectures, as well as free ePDF notes. To get the free ePDF notes, you just have to join our Telegram channel. So the link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it now. सो अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, डाउट्स हैं, देन यू कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप नंबर. आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा एंड मोर ओवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप 9 to 5 कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो. हमारी टीम आपको जरूर रिवर्ट बैक करेगी. एंड ये जो सेशन है जीआरए का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, ये एग्जाम जो है आपका 4 मार्च को है, तब तक ये सेशन चलता रहेगा. एंड मेगा क्लासेस भी हम कंडक्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग द डीआरए क्लास. तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, हम आपको नोटिफाइड कर देंगे जब भी मेगा क्लासेस होंगी डीआरए की. So do like our videos, subscribe our channel. If you have any query, then you can comment in the chat box. And don't forget to press the bell notification icon for upcoming new video. Thank you so much. See you on the other side and all the best.